Hello everyone, welcome back to Focus Capsule. As I promised that there will be three videos of RCD mini marathon series. So this is the second video in which we are going to discuss all the case laws provided in RCD book. So the institute's module is so much cluttered that you cannot find everything at one place. You have to just flip out the pages and still there is so much dilemma that where the content is given. So I have just tried to make this a small book or a small case law book for RCD. It covers all the cases which are provided in our RCD module, and as well as it also covers the cases which were asked in exams outside the book. So I have just created a separate space for the questions which were asked in the previous exams but which were not given in the module. Let me just show you. So I have tried to cover the each and every case law till date which has been asked in our RCD exams so that it helps. So these were the cases which were surprise cases. So I have written this additional surprise. So without any further delays, let's just start the video. So I have just arranged the cases chapter wise. So these are chapter wise case laws. So this is the book. Please like the video and subscribe the channel and do share it in all the groups. आरसीडी का मैराथन कहीं और नहीं मिलेगा दोस्तों, ये आखिरी अटेम्प्ट चल रहे हैं। आरसीडी जो सब्जेक्ट ही बंद हो चुका है, तो ये एक छोटी सी कोशिश है कि जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं जो, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। चैप्टर 1 शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। इसके अंदर पहला केस आता है हमारा अपोलो टायर्स लिमिटेड। In 2018, Apollo Tyres Limited minority shareholder capped the chairman and managing director remuneration at 7.5% of the profit before tax from the financial year 2018-19 down from 10% of net profit। यानी कि उनका जो एमडी था वो रेमुनरेशन ले रहा था, चेयरमैन और एमडी था वो रेमुनरेशन ले रहा था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो जो इसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने उसको कैप कर दिया 7.5% पे। ऐसा क्यों? दिस डिसीजन फॉलोड शेयर होल्डर्स रिजेक्शन फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर रीअपॉइंटमेंट ड्यू टू इंक्रीज्ड पे डिस्पाइट कंपनीज लॉसेस। कंपनी लॉस में थी, उसके बावजूद भी एमडी और चेयरमैन थे वो प्रॉफिट्स ले रहे थे। द बोर्ड अप्रूव्ड दिस कैप एंड एडिशनल परफॉर्मेंस बेस्ड रेमुनरेशन चेंजेस सजेस्टेड बाय ई एंड वाई रिपोर्ट। तो बोर्ड ने जो है इसको अप्रूव कर दिया 7.5% रेमुनरेशन को, परफॉर्मेंस बेस्ड रेमुनरेशन चेंजेस सजेस्टेड बाय ई एंड वाई रिपोर्ट। ई एंड वाई की ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने शेयर होल्डर्स की बात मान ली। नेक्स्ट इज एडवल वर्सेस हेलीवल। Section 47 of the Companies Act grants every equity shareholder the right to vote on any resolution presented before the company. This voting right is considered a property right, allowing shareholders to vote based on their interest. For a special resolution, a three-fourth majority of those voting is required as opposed to a simple majority। यानी कि कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए आपको 3/4 मेजोरिटी चाहिए होगी। जैसा कि अगर आपको कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है उसके अंदर सिंपल मेजोरिटी चाहिए, दैट इज मोर देन 50%। बट इफ यू वांट टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन देन यू नीड अ 3/4 मेजोरिटी। सो इस केस की यही एक छोटी सी इसमें पॉइंट था। ये जो सिंगल लाइनर्स है ना, जो ये सिंगल लाइनर्स है, इसका मैंने एक पैटर्न देखा है कि आईसीएसआई सिंगल लाइनर्स वो उठाता है जो एक दूसरे के साथ कंजक्शन में चलते हैं। जो अलग अलग सिंगल लाइनर्स है ना, उनके पेपर में आने के चांस बहुत कम है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Next is Northwest Transportation Company versus Betty. The resolution passed by majority shareholders at a properly held general meeting on legally competent matter is binding on both the minority shareholder and the company itself। कि अगर मेजोरिटी ने कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया है एक ड्यूली कन्वीन्ड जनरल मीटिंग के ऊपर ऑन एनी लीगल कॉम्पिटेंट मैटर, वो कंपनी पे भी बाइंडिंग है और उसके शेयर होल्डर्स पे भी बाइंडिंग है। नेक्स्ट है हमारा एशबरी एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रीच। इसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि दस द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स एंजॉय द सुप्रीम अथॉरिटी टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ कंपनी एंड जनरली टू कंट्रोल इट्स अफेयर, बट दिस इज सब्जेक्ट टू वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस। की जो मेजोरिटी है वो सुप्रीम अथॉरिटी एंजॉय तो करते हैं लेकिन उसकी दो लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन है द पावर ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एमओए एंड एओए। तो जो मेजोरिटी है वो अपनी सुप्रीम अथॉरिटी एंजॉय तो कर सकता है लेकिन सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम और एसोसिएशन। मतलब
एमओए और एओए से बाहर नहीं जा सकता वो। A company cannot legally authorize or ratify any act which being outside the ambit of memorandum is ultra virus of the company। ये वाला जो केस है इसका आपको ये ऑपरेटिव पार्ट है, ये आपको इसके अंदर याद करना है। ये मतलब अगर एग्जाम में ये आता है तो इससे आपको स्पॉट करना है कि एशबरी वाला केस था। नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई लिमिटेड वर्सेस पारस रामपुरिया सिंथेटिक्स लिमिटेड। The court ruled that automatic application of force versus Harbottle rule, which originated in different shareholders and corporate conditions, was inappropriate for Indian context. The court highlighted that principle was rooted in shareholder power dynamics specific to its country of origin, which differ significantly from those of India। जो हमारा जो हमारा फॉस वर्सेस हार्बोटल का केस है जिसके अंदर हमको ये बताया था कि जो मेजोरिटी है द मेजोरिटी ऑलवेज प्रिवेल्स, वो एक्सेप्शन है। इंडिया के अंदर वो चीज एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इंडिया के जो क्या कहते हैं, इंडिया की जो कंडीशंस हैं वो फॉरेन कंट्रीज से अलग है। तो इसके अंदर इन्होंने यही किया था कि द फॉस वर्सेस हार्बोटल रूल वाज इनएप्रोप्रिएट फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये इसमें हेल्ड हुआ था। अब हम बात करते हैं फॉस वर्सेस हार्बोटल की। ये दिसंबर 2020 के अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। इसके फैक्ट से ये जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है ना, इसको मैंने एक इसके अंदर छोटी सी एक्सरसाइज और की है कि जो भी हमारी बड़ी बड़ी केस स्टडीज थी मैंने उनको डायरेक्टली आंसर फॉर्मेट में लिख दिया, 5 मार्क्स आंसर फॉर्मेट में, कि आप यहाँ से फैक्ट्स, क्लेम्स, कोर्ट डिसीजन, तो आप इसको एज इट इज भी अगर आप इसको याद करें और एग्जाम में लिखना चाहें तो आप इसको एज इट इज भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसको मैंने 5 मार्क्स आंसर के फॉर्मेट में डायरेक्टली आंसर फॉर्मेट में ही लिख दी केस स्टडी। मतलब वी डोंट हैव टू जस्ट रीड द बुकिश लैंग्वेज इटसेल्फ, हम हमारे सामने सीधा एक 5 मार्क्स का रेडीमेड आंसर है। सो आंसर है कि फैक्ट्स इसके शेयर होल्डर फर्स्ट एंड टर्टन फाइल्ड अ लॉसूट ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्फ एंड अदर शेयर होल्डर अगेंस्ट द कंपनी डायरेक्टर एंड सॉलिसिटर। They allege that defendants' illegal transaction caused loss to the company's property. They also claimed that company has no qualified board। तो जो शेयर होल्डर थे फॉस एंड टर्टन, उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के और उसके लॉयर्स के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि जो कंपनी है वो इलीगल ट्रांजेक्शन्स कर रही है जिससे कि कंपनी की प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी के अंदर एक क्वालिफाइड बोर्ड भी नहीं है। उसके अंदर क्लेम्स फॉस एंड टर्टन सॉट डैमेजेस फ्रॉम द डिफेंडेंट्स टू बी पेड टू द कंपनी। उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टर है वो कंपनी को डैमेजेस पे करें। Court's decision. The court ruled that the minority shareholders could not bring the action. The company itself, though the majority of its shareholders could initiate legal action, the company, the majority, is the proper plaintiff for wrong done to it. Majority of the shareholders are competent to decide whether to proceed against the डायरेक्टर्स और नॉट। तो इसमें कोर्ट ने ये रूल किया कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने आप से इसके अंदर एक्शंस नहीं ले सकते, वो अपने आप से इसके अंदर क्या कहते हैं सूट नहीं फाइल कर सकते। द कंपनी इटसेल्फ और जो उसके मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो ही इसके अंदर सूट फाइल कर सकते हैं। और मेजोरिटी शेयर होल्डर ही कॉम्पिटेंट इनफ है डिसाइड करने के लिए कि हमें कंपनी को स्यू करना है या नहीं करना। तो बेसिकली इस केस का क्रक्स ये था कि मेजोरिटी ऑलवेज प्रिवेल्स। फॉस एंड हार्बोटल के अंदर ये था कि जो मेजोरिटी करेगी वो माइनॉरिटी को मानना ही पड़ेगा। इफ द मेजोरिटी ऑफ द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू डू समथिंग लिटिगेशन इज अननेसेसरी। अगर मेजोरिटी मतलब अगर सारे लोग एक ही काम करना चाहते हैं तो लिटिगेशन इज अननेसेसरी। इरेगुलर और इलीगल एक्शन दैट मेजोरिटी कैन डू लीगली और रेगुलरली शुड नॉट लीड टू लिटिगेशन एज मेजोरिटी विशेज विल इवेंचुअली प्रिवेल। नेक्स्ट इज राजा मुंदरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव। Supreme Court observation. Court usually do not get involved when shareholders complain about how the company is run. They don't interfere with the decisions of the company directors as long as the directors are following company's rules. If the majority shareholders support the director, minority shareholder generally can't do much to challenge the director's action. कोर्ट्स जो है वो कंपनी के इंटरनल मैटर्स के अंदर जल्दी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होता और दे डोंट इंटरफेयर द डिसीजंस। अगर कंपनी की मेजोरिटी ने कोई डिसीजन ले लिया है जो कि डायरेक्टर्स को भी लगता है कि ठीक है तो द माइनॉरिटी शेयर होल्डर उस केस में कुछ भी नहीं कर सकते। दे विल हैव टू फॉलो द मेजोरिटी एंड द डायरेक्टर्स विश। नेक्स्ट इज पेल्विस वर्सेस जेनसन। ये जून 19 के अंदर आया था। Facts of the case. A minority shareholder sued three directors of the company claiming that they were negligent in selling a mine for 82,000, ये यूरो है कि पाउंड है, for 82,000 euro
when its actual value was 10 लाख यूरोज। यानी कि 10 लाख यूरो की एक प्रॉपर्टी उन्होंने 82,000 यूरो के अंदर बेच दी, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने 3 डायरेक्टर्स को स्यू किया। और कोर्ट्स का डिसीजन, द लॉ सूट वॉज डिसमिस। द जज सेड the company with a majority vote from shareholder could decide to sell the mine at any price they choose. The judge also said that if the majority shareholder decide not to sue the directors for selling the mine less than its value, then the decision was valid. यानी कि अगर मेजोरिटी ये चाहती है कि जो प्रॉपर्टी है, माइन है वो कम रेट के ऊपर बिक जाए और मेजोरिटी को उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके अंदर माइनॉरिटी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। दे विल हैव टू फॉलो द फॉलो द क्या कहते हैं, दे विल हैव टू फॉलो द डिसीजन ऑफ मेजोरिटी। तो ये पेल्विस वर्सेस जेनसन का केस जून 19 के अंदर आया था। ये जो जून 19 के अंदर आया था, इसको हम ये जो जून 19 का पेपर है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे रिपीट होने के चांसेस हैं। आरसीडी के अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसा है कि वो कुछ कुछ केस लॉज ऐसे देखे हैं मैंने जो काफी रिपीटेटिव नेचर के हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। तो अब इसके अंदर मेरे को कुछ एक केसेस ऐसे लगे जो आज तक रिपीट नहीं हुए, तो इस बार उनके रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो उनमें से एक में मेरे को ये केस लगता है, पेल्विस वर्सेस जेनसन, कि ये रिपीट हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मेरे को लगता है कि रिपीट हो सकता है। काफी मेरे को इंपॉर्टेंट केस लगता है, ये रिपीट हो सकता है, एक बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट इज एडवर्ड वर्सेस हालीवेल। ये ऊपर भी आया था एडवर्ड वर्सेस हालीवेल, ये इन्होंने नीचे एक ब्रीफली बाद में डिटेल में दिया हुआ था। इसमें था कि द कंपनी इटसेल्फ शुड बी द वन टू sue if something wrong is done to it. If the wrong is something that the majority of members can agree to, an individual member cannot sue because if the majority approves it, there is no question. However, if a majority of members disagree with what was done, then the company itself can sue. Next is Gray versus Levis. Moreover, a company is a person at law. The action is vested in it and cannot be bought by a single shareholder. Where there is a corporate body capable of filing a suit for itself to recover property either from directors or officers or from any other person, then the corporate body is proper plaintiff and the only proper plaintiff. ठीक है सर। यानी कि अगर कंपनी के खिलाफ कुछ भी हुआ है तो एक सिंगल शेयर होल्डर कैन नॉट ब्रिंग द सूट, द कंपनी इज द प्रॉपर प्लेंटिफ फॉर ब्रिंगिंग द सूट्स। यानी कि कंपनी के साथ कुछ गलत हुआ है तो कंपनी इज द प्रॉपर प्लेंटिफ टू फाइल द सूट। ये मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा। नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई वर्सेस पारस रामपुरिया सिंथेटिक्स लिमिटेड एसएसएल। ये जो हमारा ऊपर था ना, जिसके अंदर कोर्ट ने ये कहा था कि जो फॉस वर्सेस हार्बोटल का रूल है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिट नहीं बैठता, तो ये केस इन्होंने बड़ी डिटेल में दिया था आगे। तो इसके अंदर था कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट वाज ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल रूल टू इंडियन company is not appropriate. Unlike companies with many small individual investors, the Indian corporate sector is primarily funded by financial institutions which provide at least 80% of the फाइनेंस। यहाँ पे इसमें जो कहने का मतलब है ना, इसका मैं आपको थोड़ा मतलब इसको डीपली समझाता हूँ। These financial supply the necessary fund for the company, even though they may hold small percentage of share. The financial contribution is significant. Therefore, excluding these institutions, ignoring the background would be unfair and unjust. तो इसके अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर क्या है ना, जो हमारी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो छोटे छोटे प्राइवेट सेटअप है या छोटी छोटी पब्लिक कंपनीज भी हैं, उनके अंदर हमारा मैक्सिमम क्या रहता है कि उन्होंने बहुत सारे लोन्स लिए होते हैं, और उन लोन्स के अगेंस्ट कह लो या उन लोन्स के अगेंस्ट कह लो, या फिर आप कह सकते हो कि उन लोन्स के इन ल्यू ऑफ दैट लोन्स उन्होंने इक्विटी शेयर इशू किए होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। मान लो किसी ने बैंक से लोन लिया, तो उसको उन्होंने कन्वर्टेबल लोन ले लिया कि इस लोन की रिपेमेंट नहीं की जाएगी, इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब वो जो बैंक था उसका इक्विटी में कन्वर्जन हो गया, तो उसके पास सिर्फ 2% शेयर है। लेकिन अब उसके बाद उसने उसको फर्दर लोन दे दिया, तो अब जो लोन उसने दिया वो उसको काफी सारा लोन दिया, मान लो 100 करोड़ का लोन दे दिया या 10 करोड़ का भी लोन दे दिया। तो जो उसकी लोन की अमाउंट है, द लोन की अमाउंट इज सिग्निफिकेंट। शेयर होल्डिंग चाहे उसकी थोड़ी सी है, और उसकी लोन की अमाउंट काफी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे अगर कोई कल को कंपनी में डिस्प्यूट होता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीइंग अ शेयर होल्डर उसको स्यू करता है, तो यहाँ पे आप उसको फॉस वर्सेस हार्बोटल के रूल का हवाला नहीं देंगे कि मेजोरिटी शेयर होल्डर कैन डू वट एवर दे वांट। यहाँ पे आपको उसके स्टेक का ध्यान रखना पड़ेगा।
because he is providing the necessary finance, necessary funds to the company which is required to run the company appropriately. तो यहाँ पे उनकी सिग्निफिकेंस काफी बढ़ जाती है. तो इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो फोर्स वर्सेस हार्बोटल का जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम काम हमारा लोन्स पे और फाइनेंसिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है. तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है फोर्स वर्सेस हार्बोटल के रूल का. तो ये आ सकता है पेपर के अंदर, क्योंकि अभी तक इन्होंने नहीं पूछा. ये जो मैंने व्हाइट रखे हुए हैं अभी तक पेपर में नहीं पूछे. सिर्फ जो मैंने केस लॉज इसमें ब्लू किए हुए हैं वही पेपर में पूछे हैं, बाकी सारे पेपर में नहीं पूछे. तो दोस्तों इसके अंदर आप एक जो चीज बड़े ध्यान से करके जाना कि जो जो ब्लू है वो तो पढ़ने ही पढ़ना है, पर जो व्हाइट वाले हैं ना उनके केस के नेम्स भी आप याद करके जाएं. तो उससे आपको क्या रहेगा कि ये अभी तक नहीं पूछे तो इनके बनने के चांसेस हैं. तो ये केस मेरे को अच्छा सिग्निफिकेंट लगता है. ये मेरे को लगता है कि पूछा जा सकता है, इसके चांस है, क्योंकि बड़ा है ना. तो जो बड़े बड़े केस हैं दे कैन बी यूज टू मेक अ 5 मार्क्स केस स्टडी इजीली. तो उनसे 5 नंबर की केस स्टडी बड़े आसानी से बन सकती है. तो उनको हमें इग्नोर नहीं करना है. नेक्स्ट इज भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल. ये जून 2021 में आया था, दिसंबर 2022 में फिर से रिपीट होके यही आया था. The plaintiff was a shareholder of Bharat Insurance Company. The company aimed to advance money at interest on security of land, houses, machinery, and other property in India. The plaintiff complained that company made several investments without adequate security and against the company's rule. कि कंपनी ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स की थी और उसके अंदर एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं दी, जो कि कंपनीज के रूल्स के बाहर थी. कोर्ट का डिसीजन. नॉर्मली कंपनीज मैनेज देयर ओन अफेयर्स without court interference. However, using the company's funds improperly is not just internal management. The director acted beyond their powers, so a single shareholder could sue. The rule of force versus Harbordal applies only when the majority acts within the company's पावर्स. यानी कि अगर वो कंपनी के अल्ट्रा वायरस को एक्ट करेंगे, कंपनी के एमओए या एओ से बाहर की कोई पावर एक्सरसाइज करते हैं, तो द सूट कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स इवन बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स. स्मॉल शेयर होल्डर्स कह लो या माइनॉरिटी शेयर होल्डर. तो ये उसके अंदर हो सकता है. तो यहाँ पे हम फॉस वर्सेस हार्बोटल का एप्लीकेशन नहीं करेंगे. ये 2 बार आ चुका है. अगर 2 बार आ चुका है तो तीसरी बार भी शायद आ सकता है. बट क्योंकि अभी हमारे आरसीडी के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे जो इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछे, तो मेरे को इस बार ऐसा लगता है कि जो नहीं पूछे ना उनमें से पक्का इस बार कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा. तो हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं सर. मीनर वर्सेस हुपर टेलीग्राफ्स वर्क. Majority shareholder should not profit at the expense of minority. In this case, majority in company A were also members of company B. They passed a resolution favorable to company B but unfavorable to company A. The court held that minority shareholders of company A could challenge the compromise. यहाँ पे जो मेजोरिटी शेयर होल्डर थे वो कंपनी के क्या कहते हैं, कंपनी के एक्सपेंस पे प्रॉफिट नहीं बना सकते. तो इस केस के अंदर क्या हुआ कि जो कंपनी ए के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स थे वो कंपनी बी के भी मेंबर्स थे. तो उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा रेजोल्यूशन पास कर लिया जो कंपनी बी के लिए तो फेवरेबल था पर कंपनी ए के लिए अनफेवरेबल था. तो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर थे उन्होंने अपना फायदा कंपनी बी से करवा लिया और कंपनी ए को नुकसान करा दिया. तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी ए है वो उनको स्यू कर सकते हैं कि आपने जो है कंपनी के एक्सपेंस पे जो है उसका फायदा, अपने गलत फायदा उठाया है. तो ऐसा किया जा सकता है. नेक्स्ट इज एलन वर्सेस गोल्ड रीफ्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका. कॉन्सेप्ट फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी. देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी. Courts decide each case based on its surrounding facts. The general test is whether the resolution passed by majority is bona fide for the benefit company as a whole or not. यानी कि जो फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी है उसकी कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है. बस कोर्ट यहाँ पे ये चेक कर लेता है कि जो रिजोल्यूशन मेजोरिटी ने पास किया वो एक बोनाफाइड रिजोल्यूशन है और कंपनी के फायदे के लिए अगर पास किया गया है तो वो ठीक है. अगर नहीं किया गया तो देन इट इज अ फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी. नेक्स्ट इज एवरशेड एमआर's ऑब्जर्वेशन इन ग्रीन हॉल वर्सेस एड्रेने सिनेमास लिमिटेड. बोना फाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल. इसका मतलब इन्होंने बताया एक्सप्लेनेशन. शेयर होल्डर मस्ट एक्ट ऑन what they honestly believe is for the benefit of the company. The company as a whole refers to the shareholder as a group, not as a separate commercial entity. तो ये मेरे को लगता है कि आ सकता है. अब ये देखो ये आपस में कितना रिलेटेड है, ये वाला फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी और बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल.
ये दो केस लॉ इकट्ठे बन सकते हैं सर, इनके ऊपर एक 5 मार्क्स की केस स्टडी बन सकती है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट केस इज RE ट्रांसवर्सल गोड exploration and land company limited. Court should not interfere with the majority decision in a general meeting if those decisions are made fairly and honestly and are not acts of fraud on the minority. तो दोस्तों अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम बिल्कुल सर पे है, तो मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी हम समेटें। तो जिन जिन केस लॉज के अंदर बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है विच कैन बी अंडरस्टूड जस्ट बाय रीडिंग, तो हम उसको फटाफट से रीड करके फटाफट से आगे बढ़ते हैं, और जहां जहां के ऊपर हमको एनालिसिस चाहिए वहां पे हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, सो दैट ये वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। क्योंकि प्रोफेशनल के अंदर सर हमारे पास टाइम बिल्कुल होता नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये विद इन 2 आवर्स हम इसको समेट दें। नेक्स्ट इज CF Birch versus Sullivan. If the wrongdoers are in control of the company, the minority shareholders representative action for fraud on the minority will be entertained by the court. ये छोटे छोटे केस लॉज बीच बीच में कहीं कहीं पे टप्पे टप्पे में दिए हुए थे, मैंने ऐसे ही उठा के लिख दिए कि चलो एक बारी हम सारे कंपाइल कर ही रहे हैं तो इन छोटे छोटे केस लॉज को भी ले लेते हैं। पार जेनकिंस LJ इन द एडवर्ड्स वर्सेस हालीवाल, ये जो छोटे छोटे केसेस है ना, इनका नाम याद करने की मुझे नहीं लगता कोई रिक्वायरमेंट है। जैसे ये हो गया 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, आई डोंट थिंक सो इनका नाम याद करने की जरूरत है। नाम उनका याद करो जिन पे लगता है कि 5 नंबर की केस स्टडी बन सकते हैं, जैसे ICICI वर्सेस पारस रामपुरिया। नाउ दिस डिजर्व्स टू बी अ 5 मार्क्स केस स्टडी, तो ये बन सकता है सर। एक ये मीनियर वर्सेस हुपर, ये कंपनी A कंपनी B, ये बन सकता है सर, 3 मार्क्स का तो बन ही सकता है। ये दोनों मिला के 5 मार्क्स के बन सकते हैं। सॉरी। तो नेक्स्ट इज ग्लास वर्सेस अटकिन। The company was equally controlled by the defendants and the plaintiffs. Plaintiffs accused the defendants of fraudulent using the company's asset for personal gain. The court allowed the action since the defendants who controlled the company would prevent it from taking action against themselves. कि जो इसके अंदर हमारे क्या कहते हैं डिफेंडेंट्स थे, वो कंपनी की प्रॉपर्टी को फ्रॉडलेंटली यूज कर रहे थे अपने गेन के लिए। तो इसके अंदर जो कोर्ट ने अलाउ किया उनकी पिटीशन को, क्योंकि उन्हें पता था कि डिफेंडेंट अपने खिलाफ तो केस लड़ेंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने उनकी जो प्लेंटिफ की एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट किया एंड द केस वाज प्रोसीडेड। नेक्स्ट इज बेली वर्सेस ओरिएंटल टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी लिमिटेड। नागप्पा चेतीदार वर्सेस मद्रास रेस क्लब, ये दिसंबर 2021 के अंदर ये आया था। A shareholder can sue if an act needing a special majority is passed by सिंपल मेजोरिटी, यानी किसी रेजोल्यूशन को अगर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए था, वो सिंपल मेजोरिटी से हमने पास कर दिया, तो जो शेयर होल्डर है वो स्यू कर सकता है। प्रॉपर फॉर्मेलिटीज मस्ट बी फॉलो टू एंश्योर एन एक्ट दैट इफेक्ट्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज वैलिड। An individual shareholder can stop the company from acting on special resolution if notice was insufficient. कि जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है वो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पे एक्ट करने से रोक सकता है अगर उसका नोटिस इनसफिशिएंट था। नेक्स्ट इज सैलमन वर्सेस क्विन एंड एस्टेंस, ये दिसंबर 2021 के अंदर आया था। मेजोरिटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट इन्फ्रिंज ऑन द इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट्स। An individual shareholder is entitled to all their rights and privileges. They can demand strict compliance with legal and statutory provisions. Provisions in the memorandum and article are mandatory and cannot be waived by simple majority. तो इस केस का जो मेजर फाइंडिंग यही है कि MOA और AOA cannot be altered और MOA और AOA cannot be waived off by a simple majority. They need a special majority. नेक्स्ट इज नागप्पा चेतियार वर्सेस मद्रास रेस क्लब, ये इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर कैन एनफोर्स देयर राइट्स अगेंस्ट द कंपनी। दीज राइट्स इंक्लूड वोटिंग, हैविंग देयर वोट रिकॉर्डेड एंड स्टैंडिंग एज डायरेक्टर इन इलेक्शन। तो यार इन्होंने इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के वो राइट्स बताए हैं। नेक्स्ट इज जोसेफ वर्सेस जॉस, where the candidature of a shareholder for directorship is rejected by the chairman, it is an individual wrong in respect which a suit is maintainable. Next is Daniel versus Daniels. Facts: minority shareholders bought an action against two directors and the company. They claimed that the director sold company's land for 4,250 euro to one director's wife. 4 years later, the land was sold for 1,20,000 euro.
The director requested to dismiss the claim as an abuse of court's decision. The court dismissed the director request to dismiss the claim. The exception to Frost and Harbottle rule allow the minority shareholder to bring an action if there is a breach of duty by the director and majority shareholders even without the fraud when it harms the company and benefits the director. ये जो केस है ना सर, ऊपर वाला जो हमने केस पढ़ा था उससे अलग कैसे है? इसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या था कि जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने कंपनी की प्रॉपर्टी कम रेट पे बेची कंपनी के फायदे के लिए। यहाँ पे चेंज क्या हुआ कि डायरेक्टर्स ने कंपनी की प्रॉपर्टी कम रेट पे बेची अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, ये केस एक अच्छा केस बन रहा है सर, डैनियल वर्सेस डैनियल का। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी डायरेक्टर कंपनी की प्रॉपर्टी अपने फायदे के लिए कम रेट पे बेच रहा है तो वो एक रॉन्ग है सर, दैट इज रॉन्ग। तो उसके खिलाफ आप कर सकते हो। तो when it harm the company and benefit the director, there is a breach of duty by the director। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस वर्सेस हार्बोटल का एक्सेप्शन, इसको फॉस वर्सेस हार्बोटल का एक्सेप्शन वाला केस से अलग मानो आप, वो चीज अलग है, ये अलग केस है। यहाँ पे इन्होंने यही क्लैरिफाई किया है सर। तो कि ये तो एक जो है, ये तो एक इंडिविजुअल रॉन्ग हुआ ना कि यार डायरेक्टर तो अपने बेनिफिट के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी को मिसयूज कर रहा है, तो ये तो एक इंडिविजुअल रॉन्ग हो गया, तो दिस कैन बी sued। नेक्स्ट इज बेनेट कोलमैन एंड कंपनी ऑर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सर, डैनियल वर्सेस डैनियल, दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिसका इंपॉर्टेंट है मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लेने को बीच बीच में कहता रहूंगा। तो वीडियो में दोस्तों इसी तरह से बने रहें और आपका सबका जोश बढ़ा रहे। जो जो इस वीडियो को देखेगा पक्का पास होएगा सर। आरसीडी का पेपर इस बार निकालना ही निकालना है। ये जो एग्जाम था, तो ये आरसीडी का जो एग्जाम है, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग, इसको क्रैक करने का थोड़ा एक अलग सा हमको कैटेगरी, एक अलग सी स्ट्रेटेजी बना के इसको क्रैक करना है। ये ऐसे क्रैक नहीं हो सकता। अगर हम उसमें मॉड्यूल के हिसाब से चले ना, तो जो हमारा मॉड्यूल है वो बड़ा ही क्लटर्ड है। उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने कुछ कुछ कहीं कहीं पे दिया हुआ है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो सेंस बनाता है। इसीलिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि थोड़ा सा हम इसको अपनी तरफ से मोल्ड कर सकें, थोड़ा हम इसको अपनी तरफ से ठीक कर सकें। तो यही एक कोशिश है इस मैराथन के जरिए। नेक्स्ट इज बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। सेक्शन 398 and 397 of the Companies Act aim to avoid winding up the company and keep it running. These sections also protect minority shareholders from oppression and mismanagement. The court has broad power to replace corporate management with non-corporate management. This may include appointing administrator, special officer, or committee of advisors. Exception to the rule in Foss versus Harbottle may be made when justice requires. Next is Panipat Woolen and General Mills Company Limited versus R.L. Kaushik. Ordinary civil courts have the jurisdiction to decide the matter unless Company Act specifically excluded, such as winding up cases. तो ये इसके साथ हमारे चैप्टर नंबर 1 के सारे केसेस कवर हो गए। चैप्टर 1 के स्टार मार्क केसेस में आपको बता देता हूँ। एक तो आईसीआईसीआई वर्सेस पारस रामपुरिया। ये केस मेरे को बड़ा जरूरी सा लग रहा है इस बार, इसको आप मार्क कर लें सर। ये एक तो क्योंकि कभी नहीं पूछा गया ना, ये कभी नहीं पूछा गया सर, ये कभी भी नहीं पूछा गया, ये केस कभी नहीं पूछा गया। हाँ, तो आप ये वाला केस मार्क कर लें सर, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है जी। एंड ठीक है सर, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। एक मेरे को लग रहा है कि इसके बनने के चांस बहुत ज्यादा है। आईसीआईसीआई वर्सेस पारस रामपुरिया। हाँ, ये आईसीआई वर्सेस पारस रामपुरिया एंड ये वाले जो केस है मीनियर हुपर, और ये तीन केस, तो ये चार केस जो है मेरे को इस बार मोस्ट प्रोबेबल लग रहे हैं। तो इनको आप अच्छे से करके जाएं, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। एक पॉल्विस वर्सेस जेनसन रिपीट होने का चांस है, तो इसको भी रीड करके जा सकते हैं। मेनली आपको ये चार केसेस जरूर देख के जाने, आईसीआईसीआई वर्सेस पारस रामपुरिया एंड मीनियर वर्सेस हुपर, एलन वर्सेस गोल्ड रीफ, एवरशेड ऑब्जर्वेशन इन ग्रीन हेल्ग वर्सेस एडरने सिनेमास लिमिटेड। बाकी सबको आप रीड भी करके जाएं तो दैट विल बी इनफ। एक ये डैनियल वर्सेस डैनियल, ये पूछा नहीं ना इन्होंने अब तक, पर ये अच्छा केस है सर, डैनियल वर्सेस डैनियल। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड केस, डैनियल वर्सेस। बाकी सब आप इसको रीड करके जस्ट गो अहेड। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2 कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स।
शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड, ये दिसंबर 2020 के अंदर आया था। द लॉ हैज नॉट डिफाइंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑपरेशन अंडर 397 एंड 399 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो जो 1956 का एक्ट था उसके अंदर क्या करने से ऑपरेशन होगा ये उसके अंदर डिफाइंड नहीं है। It is for the courts. It is for the courts to decide based on the facts of each case. Or each case, operation must involve continuous acts by majority shareholders up to the date of petition, showing burdensome, harsh, and wrongful conduct. Mere lack of confidence between majority and minority shareholders is insufficient unless it involves unfair dealings. यानी कि जो अगर आपका एक क्या कहते हैं ऑपरेशन के अंदर जो है आपका एक कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ इवेंट्स होना चाहिए टू कंक्लूड दैट एज एन ऑपरेशन, और उसके अंदर जो आपका माइनॉरिटी शेयर होल्डर मेजोरिटी शेयर होल्डर्स के बीच में अगर वैसे ही नहीं बनती एंड देन यू आर सुइंग देम फॉर ऑपरेशन, देन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो नेक्स्ट केस इज राजा मुंद्री इलेक्ट्रिक का सप्लाई कॉर्पोरेशन versus A. Nageshwar Rao. Shareholders bought an petition against the company for mismanagement by directors. The court found that the vice chairman mismanaged the company's affairs, used the company fund for personal purpose, left large amounts unpaid to the government, and neglected machinery repairs. The directorate was weakened and a local group controlled the company, making others shareholders powerless. This evidence of mismanagement led to the court to appoint two administrators with all the directive power for 6 months. अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक दिखाता हूँ। अगर आपको कोई भी केस आपको समझना है ना तो आप जस्ट इसको कॉपी करें, कॉपी, देन गो टू कोपायलट एआई। ये बहुत कमाल की ट्रिक है सर। मेरे को बीइंग अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट आपको कई बार कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो उसका मैं आपको एक छोटा सा तोड़ बता रहा हूँ। तो आप जस्ट गो टू कोपायलट एआई, इट्स जस्ट ओपनिंग, होल्ड फॉर अ सेकेंड। तो कोपायलट एआई में जाएं सर आप, क्योंकि दोस्तों हम बड़े आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो आजकल सेल्फ स्टडी करना इज मोर फीजिबल ऑप्शन देन टेकिंग क्लासेस। हर कोई क्लासेस नहीं ले सकता। तो ये कोपायलट आपका ओपन हो रहा है, हाँ हो गया। तो आप यहाँ पे करेंगे सर, आपने केस कॉपी किया, आप यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट टू, एक मिनट, देखो डिस्क्राइब इन इंग्लिश। इंग्लिश, अब जो केस मैंने पढ़ा था वो मैं समझना चाहता हूँ क्या है। मैंने वहां से पेस्ट कॉपी किया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया और लिखा डिस्क्राइब इन इंग्लिश। तो अब देखते हैं हमको क्या दिखाता है। हाँ देखो सर, ये देखो, here is the description in English of Raja Mundri Electric Supply Company versus A Nageshwar Rao पिटीशन फॉर मिसमैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स ने कंपनी के अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया डायरेक्टर्स के मिसमैनेजमेंट के लिए। कोर्ट ने पाया कि वाइस चेयरमैन ने कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज किए, कंपनी के फंड्स पर्सनल पर्पस के लिए यूज किए, गवर्नमेंट की बड़ी अमाउंट्स अनपेड छोड़ी और मशीनरी रिपेयर्स को नेग्लेक्ट किया। डायरेक्टरेट वीक हो गया और एक लोकल ग्रुप ने कंपनी को कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से दूसरे शेयर होल्डर्स पावरलेस हो गए। एविडेंस ऑफ मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट के एविडेंस को देखते हुए कोर्ट ने दो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जिनके पास सारे डायरेक्टरेट पावर्स थे फॉर 6 मंथ। तो देखो, हमको ये जो केस था ना, इसको हम यहाँ से समझते तो शायद थोड़ा सा मुश्किल लगता, पर अब हम उसको एआई में लेके गए तो कितना आसानी से समझ में आ गया कि एक्चुअली केस में हुआ क्या। तो ये आप हर केस के साथ भी कर सकते हैं। जिस केस की आपको लैंग्वेज थोड़ी क्रिटिकल लगे, जस्ट कॉपी द टेक्स्ट एंड पेस्ट इट इनटू कोपायलट एआई, वहां पे आप लिखे कि डिस्क्राइब इन इंग्लिश। तो बड़ी इफेक्टिव चीज है सर, इससे बहुत आपको पढ़ाई करने में मजा भी आएगा एंड दैट्स रियली वेरी यूजफुल। तो ये इस केस के अंदर हुआ था। बेसिकली ये केस ये डिस्क्राइब कर रहा है कि सेक्शन 398 और 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 गिव्स द पावर टू कोर्ट टू अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर विद ऑल डायरेक्टरेट पावर्स फॉर सिक्स विद ऑल डायरेक्टरेट पावर्स इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस धाबोल पावर कंपनी। An irregular or illegal action is not inherently oppressive, but its illegality affects its ऑपरेसिवनेस। कि अगर कोई इरेगुलर या इलीगल एक्शन है वो अपने आप से ऑपरेसिव नहीं हो जाएगा, पर उसकी इलीगैलिटी उसके ऑपरेसिव होने को अफेक्ट तो करेगी। A single act of oppression usually does not justify a petition under Section 397 of the Companies Act. If a single act is burdensome, wrongful, oppressive,
and has a long lasting impact, depriving a member of right and privileges. A petition under section 397 can be filed फॉर दैट एक्ट, यानी कि सिंगल एक्ट ऑपरेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर उस सिंगल एक्ट का इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है तो दैट कैन बी कंसिडर एज ऑपरेशन. Next case is Needle Industries India versus Needle Industry New Way India Holdings Limited. The Supreme Court held that an isolated and illegal act may not necessarily indicate wrongful intent or be burdensome, harsh, and wrongful. However, if a series of illegal acts can lead to conclusion that they are part of the transaction aimed at oppressing certain individuals. देखो मैं आपको इसका एक और फटाफट से आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ. इसको कॉपी करो, यहाँ जाओ, English, English, and just this. Oh, sorry, this English. I want English for this. English. है ना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आइसोलेटेड एक्ट जरूरी नहीं कि रॉन्गफुल इंटेंट, बर्डनसम एंड हार्श और रॉन्गफुल हो, लेकिन अगर इलीगल एक्ट्स का सीरीज हो तो ये कंक्लूड हो सकता है कि ये सारे एक्ट्स एक ट्रांजैक्शन का पार्ट हैं जो कुछ लोगों को प्रेस करने के लिए कहा गया है. तो आई होप आपको यहाँ से बढ़िया से समझ में आ रहा है. नेक्स्ट इज मिस्टर पी वासुदेव पी हांजी एंड अदर्स वर्सेस अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एंड जलंधर चक्रवर्ती एंड और पावर टूल्स एंड अदर अप्लायंसेस कंपनी लिमिटेड. दिसंबर 2022 के अंदर ये पूछा गया था. इट वाज हेल्ड दैट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द बोर्ड. नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ऑपरेसिव कंडक्ट. ये स्टार मार्क्ड है सर, ये दोबारा भी पूछ सकते हैं. ये बहुत अच्छा केस लग रहा है क्योंकि देखो वो केस स्टडी बना के दे देंगे कि एक कंपनी थी जी, उसके अंदर डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, और क्या कहते हैं, डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, और जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने उसको सू कर दिया. अब बताओ ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ. तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि इन द केस ऑफ वासुदेव पी हंजी एंड अदर्स वर्सेस अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एंड जलधर चक्रवर्ती एंड ओर्स वर्सेस पावर टूल्स एंड अप्लायंसेस कंपनी लिमिटेड, it was held that declaration of dividend is a collective decision of the board. Non-declaration of dividend cannot be considered as operation. तो यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर है. नेक्स्ट इज डेल वर्सेस कैरिंगटन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड पीके प्रतापन एंड अदर्स. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल solely to gain control and reduce the majority shareholder to a minority constitutes operation. यानी कि अगर कोई अपनी शेयर होल्डर बढ़ा रहा है दूसरे की शेयर होल्डरिंग को घटाने के लिए तो दिस इज अ ऑपरेशन. अ डायरेक्टर हु होल्ड्स fiduciary position cannot issue shares to himself. The oppressor would not be given the opportunity to buy out the oppressed. Next is चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल प्राइवेट लिमिटेड. ये बार बार आया सर. दिसंबर 21 में आया, जून 23 में आया, दिसंबर 23 में फिर आया. ये केस 3 बार आया. तो इस ये जो केस है ना सर, चंद्रा कृष्ण गुप्ता एंड पन्नालाल, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट केस है. ये न्यू सिलेबस के अंदर भी इन्होंने पूछा था, ये न्यू सिलेबस के पेपर में भी आया था. पन्नालाल वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, ये देखो कितनी बार आया, ये 3 बार आया सर. ये सीरीज ऑफ, ये एक ही केस है, इसकी पूरी सीरीज है 7 8 9, 7 8 और 9, ये तीन से 4 बार ये रिपीट हुआ है. तो इसके अंदर हम फटाफट से इसको पढ़ेंगे. नॉट मेंटेनिंग द एसेट्स रजिस्टर और रिकॉर्ड डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर. Not maintaining statutory books at registered office may lead to consequence for director, could be a mismanagement, but it is not a operation. यानी कि अगर रजिस्टर मेंटेन नहीं किए, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए तो मिसमैनेजमेंट तो हो सकता है, पर दिस इज नॉट ऑपरेशन. नॉन होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. while the petitioner's right as a director might have been effective, their rights as a minority shareholder was not impacted. कि अगर बोर्ड मीटिंग नहीं कराई गई तो वो भी ऑपरेशन नहीं है. Filing of unaudited balance sheets shows misconduct in the managing of a company. If the act prejudice to the company interest, it may justify under section 398. However, it cannot be regarded as operation. गलत बैलेंस शीट, अनऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल कर दी तो ये भी ऑपरेशन नहीं है, मिसकंडक्ट जरूर हो सकता है. तो ये अच्छा केस है, 3 बार रिपीट हो चुका है, चौथी बार भी रिपीट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा केस है सर. वो ये इसमें क्या है, 3 पॉइंट्स बना के देता है इंस्टीट्यूट. इसका इंस्टीट्यूट हमेशा 3 4 पॉइंट्स बना के देता है और हर एक में अलग अलग पूछता है कि बोर्ड मीटिंग नहीं हुई तो बताओ ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ. तो दिस, ये जो आपको रेफर करके जाना ही जाना है. चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल. इसको याद कर लो सर, चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल, चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल. तो
पन्नालाल गिरधारी लाल आपको याद आना चाहिए। नेक्स्ट इज ललिता राज्य लक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी। माइनर एक्ट्स ऑफ द मिसमैनेजमेंट आर नॉट कंसीडर्ड ऑपरेशन। शेयर होल्डर शुड रिजॉल्व डिफरेंसेस थ्रू म्यूचुअल एडजस्टमेंट। Court will prevent these special remedies from becoming source of vexatious litigations. Allegations including excessive expenditure, unchecked passenger, improper petrol consumption, undervalued bus sales, and low dividends. Even if proved, this allegation would not constitute an oppression. ये केस इस बार बन सकता है सर, इसको मैं येलो कर रहा हूँ। इसके ऊपर एक केस स्टडी आ सकती है कि उन्होंने बस के पेट्रोल के खर्चे में से कुछ पैसा बचा लिया, ठीक है, बस की सेल कम दिखा रहा है, लो डिविडेंड दे रहा है, तो बताओ क्या ये ऑपरेशन होगा? आंसर इज नो, दैट विल नॉट lead to an operation case. Next is Bellador Silk Limited. A member can complain of operation only in his capacity as a member, not in his capacity as a director or creditor. Next is K.S. Motilal versus K.L. Kashmiri Sirani Q Private Limited. The legal hires to be registered on probate or will are also entitled to apply. जो लीगल हायर्स हैं, ठीक है, वो भी एंटाइटल टू अप्लाई हैं ऑपरेशन के केस में। राजकुमार देवराज एंड अनदर वर्सेस जय महल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। The legal heirs of the deceased shareholder applied for transmission of share while awaiting the succession certificate. The alleged that respondents illegally allotted the shares to themselves, reducing their heirs to minority. It was held that legal heirs are entitled to file a petition alleging oppression and mismanagement. एक शेयर होल्डर था जिसकी डेथ हो गई थी, उसके लीगल हायर्स ने उसकी ट्रांसमिशन के लिए उसके ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसके सक्सेशन सर्टिफिकेट का वो वेट कर रहे थे। तो जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने शेयर अपने आप ही खुद को अलॉट कर लिए। तो दिस वाज हेल्ड ऑपरेसिव एंड जो लीगल हायर थे वो उनको स्यू कर सकते थे कि हमको शेयर इन्होंने इशू नहीं किए बल्कि खुद को ही इशू कर लिया, हालांकि हमने एप्लीकेशन भी दी हुई थी। हमारा जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है दैट इज ऑन द वे, वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो ये भी एक अच्छा केस है सर। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ये हो गया RE5 मिनट कार वॉश सर्विस लिमिटेड। ये कुछ जजमेंट्स हैं, केसेस नहीं है। पिटीशन बेस्ड ऑन मैनेजिंग डायरेक्टर्स बीइंग अनवाइज, inefficient and careless could not succeed. Special remedies against oppression and mismanagement are not only for minorities, यानी कि मेजोरिटीज, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है अगर उसके खिलाफ कुछ हो तो दे कैन ऑल्सो सीक रिलीफ। रिलीफ कैन बी ग्रांटेड इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द एक्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट, इवन इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय अ मेजोरिटी रेंडर्ड इनइफेक्टिव बाय द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। यानी कि अगर माइनॉरिटी ग्रुप कोई हलचल कर रहा है, माइनॉरिटी ग्रुप ज्यादा भाव खा रहा है या बिगड़ी कर रहा है, तो वो मेजोरिटी ग्रुप कैन ऑल्सो स्यू देम अंडर द केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, तो वो भी इनको स्यू कर सकते हैं। So the next case is Sindri Iron Foundry Limited. Mitra J of Calcutta High Court allowed relief to a majority group under this section. The court observed that if a company's interest is seriously prejudiced by the activities of a group of shareholders, such as setting up two different registered offices and holding meetings of rival boards, or when the company's business property and assets are wrongfully possessed by unauthorized person claiming to be shareholders, the court should intervene. The court dismissed the argument that majority could always resolve issues through meetings, citing complete chaos and confusion with the company. ठीक है सर। नेक्स्ट केस इज टी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हेमेंद्रा प्रसाद बरुआ। A member's right and privilege, even if affected by a single act, can be considered if the effect is continuing and deprives the member of their right and privileges for future. इसको आप स्टार मार्क कर लो सर, इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये बीच में से आएगा सर, उठ के कहीं ना कहीं से, इसका मेरे को चांस लग रहा है। ठीक है, टी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हेमेंद्रा प्रसाद बरुआ। मेंबर्स राइट एंड प्रिविलेजेस इवन अफेक्टेड बाय सिंगल एक्ट। अगर एक सिंगल एक्ट है उससे किसी मेंबर के राइट और प्रिविलेज अफेक्ट हो गए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या कंटिन्यूटी में उसके राइट डिप्राइव हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी आप ऑपरेशन कंसिडर कर लेंगे। Ramshankar Prasad versus Sindhu Iron Foundry Private Limited. A petition under Section 397 is maintainable even if the operation is of short duration and singular conduct if it affects persist indefinitely. Followed in Maharashtra Power Development Corporation versus Dhabol Power Corporation Limited. कि अगर एक छोटे, ये मतलब बार बार एक ही जजमेंट आई जा रही है यार, कि अगर एक सिंगल एक्ट है जिसका क्या कहते हैं बहुत लंबा असर है या उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हुआ है सिंगल एक्ट के, तो उसको भी आप ऑपरेशन कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे सर। द नेक्स्ट केस इज भागीरथ अग्रवाल वर्सेस
तारा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, कितने केसेस हैं इसमें? 30 केसेस हैं, हाँ। The removal of a director and allotment of share was set aside as they were done in meeting without complying with section number 286. The allotment was made to one member without offering shares on pro rata to others. A single act of issuing additional shares can have a continuous effect and constitute oppression. Relief can be sought against it, and there is no bar for limitation in such case. Ashok Kumar Agarwal versus Manchester Textile Manufacturing Trader Company Limited. ये भी केस आप स्टार मार्क कर लो सर, ये आ सकता है, ये ऊपर वाले के साथ कंजक्शन में ही पढ़ा जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड केस दैट कैन बी आस्क्ड. एक केस स्टडी बना देंगे कि उसने अपने आप को अलॉटमेंट कर ली, ठीक है, बाकियों को अलॉटमेंट की नहीं, अब बताओ ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ. तो इसमें लिखा है कि अ सिंगल एक्ट ऑफ इशूइंग एडिशनल शेयर्स कैन हैव अ कंटीन्यूअस इफेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑपरेशन. यहाँ से आप इसको उठा सकते हैं. नेक्स्ट इज ठाकुर प्रेम सिंह वर्सेस ठाकुर होटल शिमला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. रघुनाथ स्वरूप माथुर वर्सेस हर स्वरूप माथुर. Past acts of operation do not entitle a plaintiff to seek remedy under section 397. The section focuses on redeeming the future rather than addressing the past misdeeds. अगर पहले आपके साथ ऑपरेशन हुआ था और बाद के ऊपर मिट्टी डल गई थी, तो आप उस मिट्टी को दोबारा खोद के उसको मुर्दे को उखाड़ नहीं सकते. आप ऑपरेशन के अंदर केस फाइल तभी कर सकते हो आपका अगर आपका फ्यूचर का कोई राइट उससे ब्रीच हो रहा है. अगर आपको फ्यूचर में उससे कुछ तकलीफ होने वाली है, तो ही आप उस तकलीफ का जो है मर्ज जो है, जो उसकी दवा है, उसको मांग सकते हो. लेकिन अगर आपका कोई पुराना जख्म था, वो आपका जख्म ठीक भी हो गया, तो आप उसको दोबारा कुरेद नहीं सकते. दैट इज नॉट एप्लीकेबल. बात तो ठीक है यार, अगर आपकी कुछ बहुत पहले चोट लगी थी, चोट लगने के बाद ठीक हो गई थी, तो साले अब तुम दवाई क्यों खाओगे, है ना? आप दवाई तो उसकी खाओगे ना कि अब चोट लगी है, वो ठीक नहीं हो रही, उसमें दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए दवाई खाओगे. सीधी सी बात है, बिल्कुल बहुत कमाल की जजमेंट है, वाह. नेक्स्ट इज आर ई बेलाडोस सिल्क लिमिटेड. दोस्तों वीडियो को लाइक करो, आप वीडियो को लाइक करो सर, अभी वीडियो को आप लाइक करें. बड़े कमाल की वीडियो है सर, इसको आप लाइक करें. सो द नेक्स्ट इज आर ई बेलाडोस सिल्क लिमिटेड. द टर्म मेंबर यूज्ड इन दिस सेक्शन implies that only a person whose name is duly entered as a member in register of member is eligible to make an application to tribunal. A person holding shares but not entered as a member in the register of members is not eligible. A member can complain of oppression only in their capacity as a member, not as a capacity of director or creditor. ये भी आप स्टार मार्क कर लें सर, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है. Next is Peerless General Finance and Investment Limited versus Podar Projects Limited. The Calcutta High Court observed that 2 months period stipulated in section 111A of the previous act is not an outer limit. If the company refuses to register the transfer without sufficient cause within 2 months, the transferee can approach the tribunal. The time limit of 60 days to make appeal to tribunal can be extended if there are sufficient cause for delay. The analogy simply applies to section 58 as well. ठीक है सर, कि शेयर ट्रांसफर जो है उसको उसने रजिस्टर करने से मना कर दिया विद इन 2 मंथ्स. तो जो आपका ट्रांसफरी है वो ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकता है. अगर उसने उसको पहले ही मना कर दिया तो तब भी अप्रोच कर सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. छोटू सूद वर्सेस भगवान फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड. अंडर सेक्शन 111 ऑफ कंपनीज एक्ट एन एग्रीव्ड पर्सन. ये जो सेक्शन 111 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 है, ये सेक्शन नंबर 58 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है. सेक्शन 58 कौन सा है, एक मिनट, शायद ट्रांसफर ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, मेरे पास एक्ट सामने ही पड़ा है. सेक्शन 58 इज रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल. किसी ने रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया, उसके अगेंस्ट अपील आप कर सकते हैं. दिस इज सेक्शन नंबर 58. नेक्स्ट केस इज बनारसी दास सराफ वर्सेस दालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड. ये जून 24 के अंदर आया था, सबसे रिसेंटली पूछा गया था केस ये. ठीक है सर. द कोर्ट डिफाइंड सफिशिएंट कॉज एज बीइंग एडिक्वेट इनफ एंड नेसेसरी टू अकम्प्लिश द इंटेंडेड पर्पस कंसीडरिंग एग्जिस्टेंस सर्कमस्टेंसेस एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ द प्रैक्टिकल एंड कॉशियस मैन. जून 24 वाले ना आप स्किप भी कर सकते हो. आईसीएसआई सब्सिक्वेंटली रिपीट नहीं करेगा, रिपीट करेगा तो पिछले करेगा ना. मतलब देखो, इट्स नॉट रिकमेंडेड. पेपर सिर के ऊपर है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर
इस पे हमारा प्रेशर ज्यादा है, तो इसको बस रीड करके आगे निकलो, इसके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जून 24 का पेपर रिपीट होने का चांस बहुत कम है, हद से हद एक क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता रिपीट। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा पेपर रिपीट हो गया। तो यू कैन हैव अ लीनियंट व्यू ऑन दिस। ये ट्रिक ऑलवेज, दिस ट्रिक ऑलवेज वर्क्स। यार कुछ तो वर्कलोड कम होगा ना, जून 24 में 4-5 केस स्टडीज आई थी, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन इट। Next is Indian Chemical Product Limited versus State of Orissa. The Supreme Court held that the power under Article 11 to refuse the registration of transfer is discretionary. Director must exercise their power reasonably and in good faith. The court can control their discretion if they act capriciously or in bad faith. Shrimati Malina Bhagirathi, the company authorized a director to sign transfer instrument and transfer the shares without share certificates. This process violated the mandatory provision section 108, and omissions of the petitioner's claim from the register of member was without sufficient cause. The court held that the company should restore her name on the register of member and rectify the registers accordingly. Next is Asha Purandare versus Integrated Controls Private Limited. Whether the minor typographical omission can be said to sufficient cause for refusal of company to register of shares in the name of petitioner. Held no. Next is Gulshan Mahindra versus Reliance Industries. The company's reason for refusal of transmission of share and rectification of register of member, claiming that duplicate share had been transferred to registered owner, share has been dematerialized, was not considered sufficient and cogent under this section 111A. ये देखो चार केस लो इकट्ठे इकट्ठे जून 24 में आए थे, यू कैन जस्ट स्किप एंड मूव अहेड फ्रॉम दिस। ये मुश्किल थे, इस बार मुश्किल पेपर आया था जून 24 का। जॉर्ड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस 3A कैपिटल सर्विस लिमिटेड। Acquisition of share in violation of SEBI SAST regulation attracts section 111A, and the CLB can order rectification if the SEBI violation has been compounded by the acquirer. Next is Tirupati Techno Projects Limited versus Modi Spinning and Weaving Mills Company Limited. Held unless the RBI, SEBI, and SICA provisions are violated and declared so by statutory authorities or court, the company must register the shares. Transcam Limited versus First Crop International Limited. CLB मतलब कंपनी लॉ बोर्ड। CLB under section 59(4) is not empowered to investigate and inquire into allegation that that acquirers acting in concert have acquired share in violation of टेक ओवर कोड। यानी टेक ओवर कोड के अंदर अगर आपका कोई वायलेशन हुआ तो CLB उसका मैटर नहीं ले सकता। इसका सीधी सीधी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर किसी ने सेबी की कोई वायलेशन की है, इसके ऊपर ना एक MCDS के अंदर एक केस आया सर, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज के अंदर एक केस आया इस बार सेबी के अंदर, सेबी वाले लॉज के अंदर, वो कहीं ना कहीं बनेगा सर केस, कि अगर एक किसी ने सेबी के टेक ओवर कोड की वो करी, ब्रीच कर दिया, तो उसका जो बंदा था उसने कंप्लेंट फाइल कर दी एनसीएलटी के पास। तो इसके अंदर एनसीएलटी इज नॉट द डिसाइडिंग अथॉरिटी फॉर एडजुडिकेटिंग इन द मैटर्स ऑफ सेबी। अगर सेबी का कोई प्रोविजन वायलेट हुआ है तो वो सिक्योरिटी अपेलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, वो एनसीएलटी या कंपनी लॉ बोर्ड के दायरे में नहीं आएगा। ये अच्छा केस है सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीडीएस के अंदर एक एडिशनल केस है, वो शायद पेपर के अंदर बन सकता है, तो इसको आप एक स्टार मार्क कर लो सर, इसको आपको पढ़ के जाना है, ये आएगा। इस केस का नाम है ट्रांसकैम लिमिटेड वर्सेस फर्स्ट क्रॉप इंटरनेशनल लिमिटेड। ये जो मैराथन मैंने आज रिकॉर्ड किया ना, इसको अगर आप 2 से 3 बार 2x पे देख लेते हैं, 2 से 3 बार अगर आप इसको 2x पे देख लेते हैं, तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट सर। आपको सारे केसेस फटाफट फटाफट रिकॉल हो जाएंगे। अगर आप खुद से पढ़ने बैठेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, वाइल इट्स एफर्ट सेविंग एक्सरसाइज। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं या 4 बार भी देख लेते हैं पेपर से पहले, तो आपके सारे के सारे केस लॉस क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ अगर आप उसके नाम बोल बोल के भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। बाकी एक हमारे बुक के अंदर बहुत बड़ा केस दिया हुआ था, ठीक है जी, साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर वर्सेस टाटा सन एंड अदर्स। तो ये वाले केस को तो सर हम इसको क्या ही रीड करें यार, इसको सुन लेते हैं हम, इसको हम इनसे सुन लेते हैं। मैंने वैसे इसको समराइज कर दिया है बुक के अंदर, ये और बड़ा बड़ा दिया हुआ है। हम्म, लेट्स जस्ट यूज द एआई एंड इसे सुनते हैं सर केस।
2 मिनट पानी पी लूं यार। दोस्तों कैसी लग रही है आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। प्लीज कमेंट डाउन अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। वैसे तो अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, आपको फटाफट से रिवीजन के पर्पज से ही वीडियो है, मेरी भी रिवीजन हो रही है। बेसिकली इस वीडियो का पर्पज तो यही है कि मैं अपनी रिवीजन कर रहा हूँ, मेरी रिवीजन भी हो रही है। मैं सोचा कि जब मैं खुद रिवीजन बोल बोल के कर ही रहा हूँ, तो व्हाई नॉट टू मेक अ यूट्यूब वीडियो एंड दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मी हु आर सेल्फ स्टडी। देखो सब लोग क्लासेस नहीं ले सकते, ये बात सच है। मैंने भी कोई क्लास नहीं ली सीएस प्रोफेशनल में, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट बाय सेल्फ स्टडी ओनली। तो सेल्फ स्टडी के ये कुछ एक मेथड्स हैं, हम इसको फॉलो करें तो आई थिंक दिट इज वेरी मच मतलब अचीवेबल। आरसीडी एग्जाम इज वेरी मच अचीवेबल। सो ये शायद हमारा हो गया है। जो टाटा और साइरस मिस्त्री का केस था, मैंने इसको समरी में 2 पेज के अंदर खत्म कर दिया है, तो आप इसको अगर पढ़ेंगे टाइमलाइन के हिसाब से तो इट विल बी वेरी गुड। तो ये मैं लगा देता हूँ यहाँ से। Summary. Siru. Investment. TAT. अरे ये पूरा क्यों नहीं रीड कर रहा? TAT. TAT. S. चल नहीं रहा है इसके अंदर रीड आउट अलाउड ना। पहले ये पूरा पूरा चल रहा था, बस ये रीड नहीं कर रहा है इसको। तो मैं इसको, ओहो, पर ये रीड कर सकता है। जस्ट वेट अ सेकेंड, आई हैव अनदर ट्रिक ऑल्सो सर। हम इसी से रीड करवाएंगे। इसको फटाफट रीड करते हैं सर। हम्म Case Summary. Cyrus Investments Private Limited and ANR. आपको आंटी की आवाज V. सुननी Tata है? Sons Limited and ORS. Background. हाँ ये ठीक है, Tata आंटी की आवाज Sons, आती है। the holding company of Tata Group, is primarily owned by philanthropic trusts and the Shapurji Palanji Group, SP Group, with Cyrus Mistry being the heir of the SP Group. Mistry was appointed the executive chairman of Tata Sons in December 2012 but was ousted in October 2016, citing a trust deficit and departures from the Tata Group's ethos. The case centers around Mistry's removal from his position and the legal battles that followed. Timeline of events. October 24, 2016, Mistry was removed as executive chairman of Tata Sons, with Ratan Tata appointed as interim chairman. October 25, 2016, Tata Sons filed caveats in various courts to prevent an ex parte order from Mistry. December 2016, Cyrus Investments and Sterling Investment, representing the SP Group, filed a suit in the National Company Law Tribunal, NCLT, alleging oppression and mismanagement under Sections 241 to 242 of the Companies Act, 2013, and challenging Mistry's removal. February 2017, Mistry was removed as director at the Extraordinary General Meeting, EGM, of Tata Sons. February 2017, NCLT dismissed the petition filed by the Mistry camp, citing maintainability issues. September 2017, GLAD allowed a waiver for the petitioners to proceed with their case and remitted the matter back to NCLT. January 2018, the Mistry camp moved NCLT against the conversion of Tata Sons into a private company. July 9, 2018, NCLT dismissed the petitions challenging Mistry's removal. December 18, 2019, GLAD ruled in favor of the Mistry camp, reinstating Mistry as chairman of Tata Sons and setting aside Tata Sons' conversion into a private company. January 2020, Tata Sons appealed the GLAD decision to the Supreme Court. March 26, 2021, the Supreme Court set aside the GLAD's December 2019 order and dismissed the petitions, bringing the legal battle to an end. Allegations of the petitioner, Mistry's camp.
The Articles of Association were oppressive, giving undue control to Tata Trusts. Allegations of interference by Ratan Tata and N.A. Soonawalla in company decisions. Overpriced acquisitions, including the Chorus acquisition and the Nanocar project. Illegal removal of Mistry as chairman and director. Undermining of independent directors and potential insider trading violations. Alleged corruption and misconduct in various Tata Group business decisions. Tata Sons reply. The petition was seen as a strategy by Mistry to challenge his removal and tarnish the reputation of the company. The removal of Mistry followed a majority vote of the board, in line with corporate governance. The company defended the business decisions, including the Chorus acquisition and Nano project, as part of Tata's legacy of growth. Alleged interference by Ratan Tata and Soonawalla was framed as part of the advisory structure of the company. The allegations of oppression were dismissed as baseless, and the company contended that the petitions were politically motivated following Mistry's ouster. Court's decision. NCLT initially dismissed the petition, citing non-maintainability and lack of merit. NCLAT later ruled in favor of Mistry, reinstating him as chairman, but the decision was appealed by Tata Sons. Supreme Court stayed the NCLAT order, and in March 2021, set aside the NCLAT judgment, dismissing Mistry's petitions, thus ruling in favor of Tata Sons and affirming the legality of Mistry's removal and the company's conversion into a private entity. Conclusion. The case highlights the tensions within the Tata Group, especially around the leadership transition from Ratan Tata to Cyrus Mistry and his subsequent removal. The legal battle spanned several years, involving complex issues around corporate governance, shareholder rights, and the control structure of Tata Sons. The Supreme Court's final ruling upheld Tata Sons' position, effectively ending the dispute. दोस्तों यहाँ तक मेरे को लगता है कि आपको इसको बढ़िया से रीड करके समझ में आ गया। तो ये जो केस है सर, दिस इज एब्सोल्युटली रीडिंग मटेरियल, इसको रीड ही करना पड़ेगा। मैंने आपके लिए रीड भी करवा दिया एआई वाली आंटी से, उसकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है हमको। तो नेक्स्ट इज, अब इसके अंदर एक जो मैंने चीज निकाली, इसके अंदर ना इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्ट में, उसका आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी वाज अलॉटेड अ कार ड्यूरिंग द टेन्योर, यहाँ क्यों बंद चल रहा है, यहाँ क्यों चल रहा है, बंद करो। हाँ, the company secretary of the company was allotted a car during the tenure of his employment. He has retired on 31st Jan 2020. As per the terms of his employment, he is required to return the car within 3 months of his ceasing to be employment by 30 April 2020. He seeks 1 year to return. The company wants the return of car. What would be your advice to the company under given circumstances? यानी एक कंपनी ने एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, उसको कार दी थी, ठीक है, कि जब तक वो एम्प्लॉयमेंट में है तो उस कार को यूज कर सकता है। वो 31 जनवरी 2020 को रिटायर हो गया। तो जो कंपनी ने कहा कि हमारी कार हमको वापस कर दे विद इन 3 मंथ्स ऑफ सीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट, 3 महीने में रिटायर होने के बाद हमको हमारी कार वापस कर दे। कंपनी सेक्रेटरी कहता है मैं तो 1 साल बाद वापस करूंगा। अब कंपनी को वो कार वापस चाहिए, तो अब आपको कंपनी को एडवाइस करना है कि वो क्या करे। ये जो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में क्वेश्चन पूछा हुआ पर इसका आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर मैंने एक ड्राफ्ट किया है छोटा सा। As per the terms of employment contract, the company secretary is required to return the car within 3 months. ठीक है, since the employee is seeking 1 year to return the car, the company is under no obligation to grant this extension. मतलब कंपनी के ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि वो इसको एक्सटेंशन देगी। तो अब मैं कंपनी को क्या एडवाइस करूंगा, एनफोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। द कंपनी हैज राइट टू एनफोर्स टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच स्टिपुलेट द कार मस्ट बी रिटर्न विद इन 3 मंथ्स। नो ऑब्लिगेशन टू एक्सटेंड, कंपनी को कोई जरूरी नहीं है, लीगली बाउंड नहीं है वो उसको एक्सटेंड करने के लिए। सेंड अ फॉर्मल रिमाइंडर, उसको एक फॉर्मल रिटर्न रिमाइंडर दो कि भैया आपको डेडलाइन से पहले कार वापस करनी है। नेगोशिएशन ऑप्शन, उसके साथ नेगोशिएट करो कि भाई ये तो गलत बात होगी, तुम साले कौन यार, किसके खाए पिए खिसके वाली बात कर रहे हो, तो ये बात ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज लीगल एक्शन, अगर कार वो तब भी रिटर्न नहीं करता तो फिर उसको पकड़ के सूत दीजिए सिविल कोर्ट में और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ब्रीच में। तो आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर 2 की पेनल्टीज सारी की सारी, चैप्टर 2 तक हमारा सारा पेनल्टीज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है।